Hello students, today we will discuss three-dimensional transformation. In this we cover translation, rotation, scaling, reflection and shear transformations. Now in translation we have to shift the position of an object from one point to another point in three-dimensional coordinate. ओके तो हमें क्या करना है, कोई ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन को शिफ्ट करना है थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट में. तो थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट में कोई भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए वी रिक्वायर एक्स वाई एंड जेड वैल्यूज. नाउ दिस इज द पॉइंट एक्स वाई जेड एंड वी हैव टू शिफ्ट दिस पॉइंट टू एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश. तो कितना हमें एक्स के अलोंग शिफ्ट करना है, कितना हमें वाई के अलोंग शिफ्ट करना है, कितना हमें जेड एक्सिस के अलोंग शिफ्ट करना है, दिस इज गिवन बाई ट्रांसलेशन वेक्टर. तो ट्रांसलेशन वेक्टर इज टी एक्स कॉमा टी वाई कॉमा टी जेड. तो टी एक्स इज डिनोटिंग कि हाउ मच वी हैव टू शिफ्ट अलोंग एक्स एक्सिस. तो एक्स एक्सिस के अलोंग कितना हमें शिफ्ट करना है, दैट इज डिनोटेड बाई टी एक्स. तो ओल्ड पॉइंट था हमारा एक्स, उसमें हमने टी एक्स ऐड किया तो वी गेट न्यू पॉइंट एक्स डैश. यानी एक्स एक्सिस के अलोंग हमें टी एक्स ऐड करेंगे तो वी गेट एक्स डैश. द सेम वे वाई डैश वी हैव टू get y adding ty to the original y coordinate, and same way we get z dash by adding tz to the original z coordinate. तो point x y z में if we add the translation vector we get x dash y dash z dash. This is given by this translation matrix. This matrix is given in homogeneous coordinate. Okay, so this is the our original points x, y, z, that is this one, and this is the translation matrix. It tells you how much we have to shift along x, y and z axis. This is tx, ty, tz. If we multiply this, we get new points x dash, y dash and z dash. तो इस मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे तो यू गेट these equations. Okay, so this matrix is equivalent to these equations, and this is also written as p dash. This is your p dash. This T is that translation matrix and this P is the original point. In this way we can calculate the new positions of a point by translation. Okay. Now let's see an example. We are given a line with two coordinates A 0, 3, 1 and B 3, 3, 2, and we have to apply translation with distance 1 towards x axis, 1 towards y axis and 2 towards z axis, and obtain the new coordinates of the line. Okay, तो हमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं लाइन के और इन दोनों ही पॉइंट्स को हमें शिफ्ट करना है 1 यूनिट अलोंग एक्स एक्सिस, 1 अलोंग वाई एंड 2 अलोंग जेड एक्सिस. तो ओल्ड कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0, 3, 1, बी के 3, 3, 2. ट्रांसलेशन वेक्टर क्या है, टी एक्स, टी वाई, टी जेड. एक्स से अलोंग हमें 1 यूनिट शिफ्ट करना है, y के अलोंग 1 और z के अलोंग 2. तो दिस इज योर ट्रांसलेशन मैट्रिक्स. ओके, नाउ वी हैव टू अप्लाई द ट्रांसलेशन इक्वेशंस टू गेट द न्यू पॉइंट्स, दैट इज द पॉइंट्स आफ्टर ट्रांसलेशन. ओके, तो व्हाट वी हैव टू डू, दिस इज द ओरिजिनल पॉइंट एंड दिस इज द ट्रांसलेशन वैल्यू अलोंग x एक्सिस. द ओरिजिनल पॉइंट ऑफ A इज 0 and the translation along x axis is 1. So 0 plus 1, 1. The new point after translation of point A is 1. Same way we have to calculate new y position by the original y position is coordinate is 3 and the ty is 1. 3 plus 1 is equal to 4. And the same way the original z coordinate is 1 and the tz is 2. So 1 plus 2 is 3. So point A 0, 3, 1 after translation, now its new point is 1, 4, 3. And the same way you can calculate the new coordinates after translation of point B 3, and we have to add 1, it becomes 4. Then the along y axis the original value is 3 and the ty is 1, so 3 plus 1, 4 and 2 plus 2 is 4. The new coordinate of point B is 4, 4, 4. Okay, so after translation A is shifted to 1, 4, 3 and B is shifted to 4, 4, 4. Okay, so this is the way we can apply translation on the objects. Now let's see rotation.
रोटेशन इज द एंगुलर मूवमेंट ऑफ ए ऑब्जेक्ट। ओके, जो ट्रांसलेशन है वो लीनियर मूवमेंट है ऑब्जेक्ट का, और रोटेशन है एंगुलर मूवमेंट। अगर हम किसी एंगल से ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहे हैं, दिस इज व्हाट कॉल्ड एंगुलर रोटेशन और एंगुलर शिफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ यहाँ पे जो रोटेशन है, एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हम रोटेशन जो कर रहे हैं वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। ओके, तो जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है उसको हम मानेंगे पॉजिटिव एंगल से हम रोटेट कर रहे हैं, और जो क्लॉकवाइज रोटेशन है दैट इज ट्रीटेड एज नेगेटिव एंगल रोटेशन। दैट इज, अगर हम कह रहे हैं कि 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करना है, इसका मतलब जो एंगल है वो +30 है, और अगर 30 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन करना है इट मीन्स जो एंगल है वो है -30। तो इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन वेदर द रोटेशन इज बीइंग परफॉर्म्ड एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, और अगर कोई मेंशन नहीं किया जा रहा है तो यू हैव टू अज्यूम द रोटेशन इज अबाउट एंटी क्लॉकवाइज। ओके, यहाँ पर जो रोटेशन होगा वहाँ पर 3 एक्सिस हैं, और तीनों एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो सकता है। तो लेट्स सी वन बाय वन रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस। तो दिस इज अ फिगर, यू कैन सी दैट कि जो रोटेशन होगा वो एक्स वाई प्लेन में होगा, क्योंकि हम रोटेशन कर रहे हैं अबाउट वाई एक्सिस। दिस इज लाइक दैट वी आर व्यूइंग अलोंग वाई एक्सिस एंड सीइंग टुवर्ड्स एक्स वाई प्लेन। तो हम वाई एक्सिस के अलोंग रोटेशन कर रहे हैं, और रोटेशन जो एक्चुअल में हो रहा है वो एक्स वाई प्लेन में हो रहा है। तो जो वाई एक्सिस के अबाउट रोटेशन कर रहे हैं तो वाई के कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं होगा। आफ्टर रोटेशन द कोऑर्डिनेट ऑफ जेड रिमेन्स सेम। तो जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन होगा उस एक्सिस के अलोंग पॉइंट में कोई चेंज नहीं होगा। आफ्टर रोटेशन द न्यू पॉइंट इज सेम एज द ओल्ड पॉइंट। ओके, अब एक्स वाई प्लेन में रोटेशन हो रहा है तो एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे। हाउ वी कैन गेट दिस? द एक्स न्यू एक्स वैल्यू विल बी एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, और न्यू वाई कोऑर्डिनेट विल बी एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा, और न्यू जेड विल बी द ओरिजिनल जेड। और इसी इक्वेशन को हम यहाँ पे मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा हुआ है। दिस इज द न्यू पॉइंट एक्स डैश वाई डैश जेड डैश जो हमें मिलेगा आफ्टर रोटेशन। एक्स वाई जेड ये आपके ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स हैं, और दिस इज द रोटेशन मैट्रिक्स अबाउट जेड एक्सिस। ओके, तो ये मैट्रिक्स आपको याद होनी चाहिए। ओके, सो दैट यू कैन अप्लाई। आपको ये ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स किस एक्सिस के अबाउट, रोटेशन किस एक्सिस के अबाउट हो रहा है, और इसी को लिखा गया यहाँ शॉर्ट हैंड नोटेशन में। दिस इज P रिप्रेजेंटिंग द पॉइंट, द P डैश इज द न्यू पॉइंट, P इज द ओरिजिनल पॉइंट, एंड थीटा इज द एंगल ऑफ रोटेशन, R रिप्रेजेंट रोटेशन, एंड दिस Z is representing that we are rotating the point about Z axis. The same way we can perform rotation about X axis. You can see in the figure. इस केस में जो रोटेशन हो रहा है वो वाई जेड प्लेन में होगा। ओके, और एक्स का जो कोऑर्डिनेट है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो ओरिजिनल एक्स है आफ्टर रोटेशन वही आपका जो होगा न्यू एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा, और वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स में चेंज होंगे। एंड दिस इक्वेशन इज रिटन इन द मैट्रिक्स फॉर्म हेयर। ओके, द सेम वे we can perform rotation about y axis. Okay, in that case the rotation जो हो रहा है वो x z प्लेन में होगा, तो x और z के कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे। तो न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ z इज इक्वल टू z cos थीटा माइनस x sin थीटा, न्यू x कोऑर्डिनेट विल बी z sin थीटा प्लस x cos थीटा, और न्यू y इज रिमेन्स द सेम, एंड दिस इज द मैट्रिक्स। ओके, दिस इज द रोटेशन मैट्रिक्स अबाउट y एक्सिस। तो जो रोटेशन मैट्रिक्स है ये तीनों अलग अलग है, अबाउट जेड एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस, अबाउट एक्स एक्सिस। तीनों मैट्रिक्सेस रोटेशन मैट्रिक्सेस अलग अलग है। ओके, तो तीनों मैट्रिक्सेस आपको रिमेंबर होनी चाहिए सो दैट यू कैन डायरेक्टली अप्लाई इन न्यूमेरिकल्स। ओके, एक चीज़ ध्यान देने की है कि जो इन तीनों केस में जो रोटेशन हो रहा है अबाउट एक्सिस हो रहा है, और जो पॉइंट ऑफ रोटेशन है वो आपका ओरिजिन है। तो वी आर रोटेटिंग द ऑब्जेक्ट अबाउट origin and the rotation is about any one of the 3 coordinate axes. Okay, now this is an example, a point is there 1 2 3 और उसको रोटेट करना है 90 डिग्री टुवर्ड्स एक्स एक्सिस एंड फाइंड आउट द न्यू कोऑर्डिनेट्स। तो हमारे पास ओन कोऑर्डिनेट्स क्या है 1 2 3, रोटेशन एंगल थीटा है 90 डिग्री। नाउ द न्यू कोऑर्डिनेट्स हो गए एक्स न्यू वाई न्यू जेड न्यू, you may also call x dash y dash z dash,
तो रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस हो रहा है, तो एक्स के कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं होगा, तो एक्स न्यू इज सेम एज एक्स ओट, दैट इज 1। तो एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है, तो रोटेशन जो हो रहा है वो वाई जेड प्लेन में हो रहा है, तो वाई और जेड के कोऑर्डिनेट्स में चेंज होगा, एंड यू कैन यूज द इक्वेशन ऑफ द रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस, दिस इज वाई कॉस थीटा जेड साइन थीटा, इसकी वैल्यू आ जाएगी -3। सेम वे यू कैन कैलकुलेट द न्यू जेड वैल्यू, दिस इज 2। तो आफ्टर रोटेशन द न्यू कोऑर्डिनेट इज एक्स रिमेन सेम, वाई नाउ बिकम्स -3 and z becomes 2. So in this way you can calculate the new coordinates of a point after rotation. Okay, you have to remember what is the angle of rotation, whether it is clockwise or anti-clockwise. Anti-clockwise है तो उसे आप पॉजिटिव रोटेशन देंगे, क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव रोटेशन है, और किस एक्सिस के अबाउट रोटेशन कर रहे हैं उस एक्सिस के करस्पॉन्डिंग आपको रोटेशन मैट्रिक्स यूज करनी है। नाउ लेट्स सी जनरल 3 डायमेंशनल रोटेशंस। ओके, अभी तक जो हमने रोटेशन देखा है दैट इज अबाउट ओरिजिन, द पॉइंट ऑफ रोटेशन इज ओरिजिन, एंड जो रोटेशन हो रहा है वो या तो एक्स एक्सिस के अबाउट हो रहा है, वाई के हो रहा है, या जेड एक्सिस के अबाउट हो रहा है। नाउ यहाँ पे जो जनरल रोटेशन की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 केस हैं। केस नंबर 1 है कि जो ऑब्जेक्ट है is to be rotated about an axis that is parallel to one of the coordinate axis। यानी हम रोटेशन जो कर रहे हैं किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस के अबाउट नहीं कर रहे हैं, एक ऐसी लाइन के अबाउट कर रहे हैं जो किसी एक्सिस के पैरेलल है। आप देख सकते हैं दिस इज द लाइन जिसके अबाउट हमें रोटेट करना है, ना कि हमें किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है। तो यू हैव टू रोटेट द ऑब्जेक्ट अबाउट ए लाइन एंड दैट लाइन इज पैरेलल टू वन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं तो डॉटेड लाइन है, इसके अबाउट हमें इस पिरामिड को रोटेट करना है, और ये डॉटेड लाइन जो है वो आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ओके, तो हाउ वी कैन परफॉर्म रोटेशन, तो व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, जो लाइन है जिसके अबाउट रोटेट करना है इसको हमें ट्रांसलेट करना है ताकि ये किसी एक्सिस के अबाउट ये कोइंसाइड कर जाए। तो सिंस दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो हमें इस लाइन को ट्रांसलेट करना है इस तरीके से कि ये लाइन एक्स एक्सिस से कोइंसाइड कर जाए। ओके, तो फर्स्ट स्टेप इज द ट्रांसलेट द ऑब्जेक्ट सो दैट रोटेशन एक्सिस कोइंसाइड्स विद द पैरेलल कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, तो दिस इज द आपकी जो एक्सिस है जिसके अबाउट आपको रोटेट करना है, इसको आपको ट्रांसलेट करना है ताकि वो किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस के अबाउट कोइंसाइड कर जाए। एक बार कोइंसाइड करेगी तो दिस सिनेरियो, दिस पिक्चर becomes like this one. Here the dotted line coincide with x axis. Okay, afterwards we have to rotate the object about x axis. Okay, to perform the AC5 rotation about that axis. तो x axis के about हम रोटेशन परफॉर्म करेंगे, उसकी जो हमें मैट्रिक्स है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हाउ व्हाट इज द ट्रांसलेशन, व्हाट इज द रोटेशन मैट्रिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट अबाउट x axis. Once the rotation has been performed, here you can see that rotation perform हो गया। Now what we have to do, we have to again bring this line to its original position। ये जो एक्सिस है जिसके अबाउट लाइन है जिसके अबाउट हम रोटेट कर रहे हैं इसको फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंचाना है, लाइक दैट वन। तो हमें क्या करना होगा, फिर से यहाँ से इस लाइन को हमें इनवर्स ट्रांसलेट करना है ताकि ये लाइन अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच जाए। तो ट्रांसलेट द ऑब्जेक्ट सो दैट द रोटेशन एक्सिस इज मूव टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो यहाँ पे 3 ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं। फर्स्ट इज द ट्रांसलेशन सो दैट दिस रोटेशन लाइन विल coincide with the one of the axis, then we have to perform the rotation and then we have to perform inverse rotation so that the object moves back to its original position। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ये ट्रांसलेशन कर रहे हैं, देन रोटेशन कर रहे हैं एंड देन इनवर्स ट्रांसलेशन कर रहे हैं, एंड दिस इज द पॉइंट जिसको, एंड दिस इज द P डैश इज द न्यू पॉइंट। तो आफ्टर परफॉर्मिंग दीज 3 ट्रांसफॉर्मेशंस we get the new coordinates। okay, so in that case when object is to be rotated about an axis parallel to one of the coordinate axis, we have to perform 3 types of transformation। First the translation, second the rotation, and third the inverse translation।
t⁻⁻1 इज इनवर्स ट्रांसलेशन। जो हमने यहाँ पे t है, इस यहाँ पे जो हमने ट्रांसलेशन वेक्टर लिया है t-1 में हम उसका रिवर्स ट्रांसलेशन वेक्टर देंगे। ओके, तो इन दिस वे वी कैन परफॉर्म रोटेशन अबाउट an axis that is parallel to one of the coordinate axis. Okay. Now, case 2 is more complex. When an object is to be rotated about an axis that is not parallel to one of the coordinate axis. प्रीवियस वन में क्या था कि जिस एक्सिस के अबाउट हमें ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है वो किसी ना किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल थी। यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट को जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है वो किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल नहीं है। तो in that case we have to perform 5 steps to perform this type of transformation. This is the original scenario। आप देख सकते हैं जो डॉटेड लाइन है इस लाइन के अबाउट हमें रोटेशन परफॉर्म करना है। आप देख सकते हैं ये लाइन किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल नहीं है। ओके, तो पहला काम क्या है कि ट्रांसलेट द ऑब्जेक्ट सो दैट द रोटेशन एक्सिस पास थ्रू द कोऑर्डिनेट ओरिजिन। तो पहले हमें इस रोटेशन एक्सिस को ट्रांसलेट करना है ताकि वो ओरिजिन से पास हो। यू कैन सी हियर कि हमने इस रोटेशन एक्सिस को ट्रांसलेट किया है और नाउ इट इज़ पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओके, सेकंड है रोटेट द ऑब्जेक्ट सो दैट द एक्सिस ऑफ रोटेशन कोइंसाइड्स विद द वन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब यहाँ पे करना क्या है कि हमें इस तरीके से रोटेट करना है कि ये जो रोटेशन एक्सिस है ये किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस से कोइंसाइड कर जाए। तो हमने यहाँ पे रोटेट किया है, आप देख सकते हैं कि दिस रोटेशन एक्सिस इज नाउ कोइंसाइड्स विद जेड एक्सिस। ओके, तो दो स्टेप हैं। फर्स्ट इज रोटेशन ऑफ द रोटेशन एक्सिस सो दैट इट विल पास थ्रू द ओरिजिन। सेकंड स्टेप है कि इस रोटेशन एक्सिस को हमें रोटेट करना है बाय द एंगल। इसने एंगल से रोटेट करना है कि ये किसी एक एक्सिस के कोइंसाइड कर जाए। इन दिस केस इट इज कोइंसाइडिंग विद जेड एक्सिस। After that we have to perform the specified rotation about that coordinate axis. उसके बाद हमें क्या करना है, रोटेशन परफॉर्म करना है। Here we are performing the rotation about z axis. Okay. After that apply inverse rotations to bring the rotation axis back to its original orientation. इसके बाद हमें फिर से इन्वर्स रोटेशन करना है। जो स्टेप नंबर 2 में हमने जिस एंगल से रोटेट किया था उतना ही एंगल से इन्वर्स रोटेट करना है। मीन्स अगर स्टेप नंबर 2 पे हमने 30 डिग्री से रोटेट किया था तो स्टेप नंबर 4 में हम -30 डिग्री से रोटेट करेंगे सो दैट कि वी गेट द सिचुएशन दैट इज इक्विवेलेंट टू दैट फर्स्ट स्टेप। आप देख सकते हैं दिस स्टेप नंबर 4 इज सेम एज स्टेप नंबर 1। तो इस तरीके से उतने एंगल रोटेट करना है ताकि जो रोटेशन एक्सिस है वो फिर से अपने असली ओरिएंटेशन पे आ जाए। You can see that and you can see that. And after that, apply inverse translation to bring the rotation axis back to its original position. और यहाँ पे आगे फिर से हमें इन्वर्स रोटेशन परफॉर्म करना है, सॉरी इन्वर्स ट्रांसलेशन परफॉर्म करना है सो दैट कि ये जो रोटेशन एक्सिस है फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे पहुँच जाए। तो यहाँ पे हमने जिस ट्रांसलेशन वेक्टर को यूज़ किया था स्टेप नंबर 1 में उसका इन्वर्स ट्रांसलेशन करेंगे तो वी गेट the rotation axis back to its original position. You can see that. So here we are using 5 steps because the rotation axis is not parallel to coordinate axis. First we have to translate the rotation axis ताकि वो origin से coincide कर जाए। फिर हमें यहाँ पे इस rotation axis को rotate करना है by the angle so that ये किसी एक coordinate axis से coincide कर जाए। उसके बाद जिस एंगल से हमें रोटेट करना ऑब्जेक्ट को उतने एंगल से हम ऑब्जेक्ट को रोटेट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे इन्वर्स रोटेशन परफॉर्म करेंगे ताकि जो रोटेशन एक्सिस है फिर से अपने असली ओरिएंटेशन पे आ जाए जो उसका एक्चुअल ओरिएंटेशन है। और उसके बाद यहाँ पे हम इन्वर्स ट्रांसलेशन परफॉर्म करेंगे ताकि जो रोटेशन एक्सिस है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे पहुँच जाए। तो यूजिंग दीज 5 स्टेप्स वन आफ्टर अनदर इन अ सीक्वेंस we can rotate an object about an axis that is not parallel to one of the coordinate axis. Okay. Now scaling transformation. This transformation is used to change the size of the object. अगर किसी ऑब्जेक्ट की हमें साइज को कम ज़्यादा करना है
we have to perform scanning. Okay, so we can perform scanning along x axis, y axis and z axis. तीनों एक्सिस के along हम scanning perform कर सकते हैं. And this is what the scanning matrix is there. The scanning parameters are sx, sy and sz. You can see that. Okay, sx is telling that कि x डायरेक्शन में आपको कितना स्कैन करना है. ओके, sy इज टेलिंग दैट कि y डायरेक्शन के along आपको कितना स्कैन परफॉर्म करना है, और sz ये बता रहा है कि z डायरेक्शन के along कितना हमें स्कैनिंग करनी है. ओके, अगर हमें ऑब्जेक्ट के साइज को एज इट इज रखना है, ना कम करना है ज़्यादा करना है, तो इन स्कैनिंग पैरामीटर्स की वैल्यू होगी 1. तो वैल्यू ऑफ दीज स्कैनिंग पैरामीटर अगर 1 है तो इसका मतलब हम ऑब्जेक्ट की साइज उस डायरेक्शन के along में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं. अब सपोज करिए कि sx की वैल्यू हम 2 कर दें, इसका मतलब है कि हम x एक्सिस के along जो साइज है उसको डबल कर रहे हैं. ओके, अगर 3 कर रहे हैं तो 3x हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ x, जो आपकी प्रीवियस x वैल्यू है, और sx को हम 3 कर दें तो इट बिकम 3x. तो x डैश होगा 3x, मतलब जो ओरिजिनल x वैल्यू थी उसका 3 टाइम्स इज x डैश. ओके, और इसी x को अगर 1/2 कर दें तो इट बिकम्स हाफ ऑफ x. यानी कि आप जो x एक्सिस के along जो साइज है उसको आप हाफ कर रहे हैं. ओके, तो दिस इज द थिंग कि हाउ मच यू वांट टू स्केल along x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस. तो जिस एक्सिस के along जितना आपको स्केल करना है उस हिसाब से आपको इन स्केलिंग पैरामीटर्स की वैल्यू सेट करनी होगी. ओके, एंड देन यू विल कंप्यूट द न्यू coordinates x dash, y dash and z dash after scaling. So this is the scaling matrix. x, y, z are the original points जिनको कि स्केल करना है, and x dash, y dash and z dash are the new points after scaling. And this is written in the short notation. P dash represents the new points, S is representing the scaling matrix, and P is representing the original point. Okay. Let's see an example कि 3D ऑब्जेक्ट है जिसमें 4 कोऑर्डिनेट्स हैं A, B, C and D. Apply the scaling parameter 2 towards x axis, 3 towards y axis and 3 towards z axis and obtain the new coordinates of the object. ओके, तो ये आपके ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं ABCD. स्केलिंग अलॉन्ग x एक्सिस कितना है? स्केलिंग पैरामीटर 2 towards x axis, यानी Sx is 2, 3 towards y axis, Sy is 3 and 3 towards z axis, Sz is 3. तो ये आपको गिवन है. ये these are the scaling parameters. Okay, तो how we can compute the new coordinates? तो you can use the equations. तो आपको पहले कोऑर्डिनेट A पे ये अप्लाई करना है. तो कोऑर्डिनेट A के लिए जो x न्यू आएगा वो क्या आएगा? 0 मल्टीप्लाइड बाई Sx, दिट इज 0. y न्यू क्या होगा? y है 3 मल्टीप्लाइड बाई Sy, दिस बिकम्स 9. z न्यू क्या होगा? z ओल्ड इज 3 and zy, Sz is 3, it is 9. So after performing scaling on point A, now the new position of point A is 0, 9, 9. The same way you have to perform the same step on point B, C and D, and then you get the new coordinates after scaling of all the 4 points. Okay, clear? Now scaling with respect to a selected fixed position xf, yf, zf. अब यहाँ पे हम जो स्केलिंग कर रहे हैं वो हम ओरिजिन के अबाउट नहीं कर रहे हैं, किसी भी पॉइंट के अबाउट कर सकते हैं. ओके, द पॉइंट क्या दिया है? एस एफ, वाई एफ, जेड एफ. दिस इज द पॉइंट जिसके अबाउट हमें स्केलिंग करनी है, ना कि ओरिजिन के अबाउट. जो हमने लास्ट स्लाइड में जो मैट्रिक्स देखी थी, स्केलिंग मैट्रिक्स, वो थी स्केलिंग अबाउट ओरिजिन. तो व्हाट वी हैव टू डू, द सेम लॉजिक जो हमने कि रोटेशन के केस में अप्लाई की थी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ट्रांसलेट द फिक्स पॉइंट टू द ओरिजिन. जो पॉइंट है जिसके अबाउट हमें स्केलिंग करनी है, इसको ट्रांसलेट करना है ताकि ये ओरिजिन से कोइंसाइड कर जाए. तो दिस इज द ओरिजिनल पिक्चर इज देयर, द ऑब्जेक्ट इज देयर एंड इट इज हैव टू स्केल अबाउट एक्स एफ, वाई एफ, जेड एफ. इस एक्स एफ, वाई एफ, जेड एफ को ट्रांसलेट करना है so that it coincides with the origin. Okay,
and then we have to perform the scaling, okay, using the equation you have seen previously. तो यहाँ पे scaling matrix अप्लाई करके we have to perform the scaling on the object, and after scaling फिर से हमें इस पॉइंट को एस एफ एफ वाई एफ और जेड एफ को इसके ओरिजिनल पोजीशन पे भेजना है. तो वी हैव टू ट्रांसलेट द फिक्स पॉइंट बैक टू इज ओरिजिनल पोजीशन, यानी इनवर्स ट्रांसलेशन करना है. ओके, तो पहले वी आर ट्रांसलेटिंग द ऑब्जेक्ट so that it coincides with the origin. Then we have to perform scaling, and then we have to perform inverse translation, and then after performing 3 transformation in a sequence we get the new coordinates about xf, yf and zf. तो क्लियर है कि पहले हमें ट्रांसलेट करना है ताकि जिस पॉइंट के अबाउट स्केल करना है वो ओरिजिन से कोइंसाइड कर जाए. उसके बाद हम स्केलिंग करेंगे और फिर से इस पॉइंट को इसके ओरिजिनल पोजीशन पे भेजना है. वी हैव टू परफॉर्म इनवर्स ट्रांसलेशन. ओके, नाउ लेट्स सी रिफ्लेक्शन. तो रिफ्लेक्शन इज ए ट्रांसफॉर्मेशन इन विच वी गेट ए मिरर इमेज. ओके, तो आप देख सकते हैं ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है इट इज अबाउट जेड एक्सिस. ये उसकी मैट्रिक्स लिखी हुई है. ओके, लेट्स सी हाउ इट इज रिटन. दिस इज एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट एक्सिस, और हम जेड के अबाउट रिफ्लेक्शन देंगे. तो जिस एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन देंगे सिर्फ उसी एक्सिस के अलावा कोऑर्डिनेट चेंज होगा, बाकी एक्सिस के अबाउट कोई भी कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो रिफ्लेक्शन हो रहा है इट इज एंगुलर रोटेशन अबाउट 180 डिग्री. ओके, तो जेड एक्सिस के अबाउट रोटेशन करेंगे तो जेड की वैल्यू जो प्लस जेड थी वो माइनस जेड हो जाएगी, और एक्स वाई में कोई चेंज नहीं होगा. तो दिस इज बिकम लाइक दैट. एक्स एंड वाई में कोई चेंज नहीं है, और जो जेड एक्सिस है इट इज़ नाउ पॉइंटिंग इनवर्स. यहाँ पे आउटवर्ड्स पॉइंट कर रही है, यहाँ इनवर्स, मतलब कि जेड कोऑर्डिनेट जो यहाँ पॉजिटिव था नाउ इट बिकम्स नेगेटिव. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस वन एंड दिस वन, ये एक्स के अबाउट रिफ्लेक्शन शो कर रहा है. दिस इज शोइंग रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस, एंड दिस इज शोइंग रिफ्लेक्शन अबाउट जेड एक्सिस. तो यहाँ पे -1 लिखा है क्योंकि हम जो रिफ्लेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं अबाउट जेड एक्सिस, और इन दैट केस एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं होगा. अगर हम रिफ्लेक्शन परफॉर्म कर रहे होते एक्स एक्सिस के अबाउट, तो ये जो एक्स के करस्पॉन्डिंग जो 1 है दिस बिकम्स -1, एंड वाई और जेड के करस्पॉन्डिंग दिस बिकम्स 1. और अगर हम वाई के अबाउट रिफ्लेक्शन परफॉर्म करते हैं तो दिस 1 बिकम्स -1, एंड दिस एंड दैट 1 इज 1. तो मोटा मोटा ये है कि जिस एक्सिस के अबाउट आप रिफ्लेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उस एक्सिस के अबाउट जो कोऑर्डिनेट वैल्यू है सिर्फ वो नेगेटिव हो जाएगी, और बाकी दूसरी 2 कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो अनइफेक्टेड रहेंगे. ओके, यू कैन सी इन द एग्जाम्पल दैट a triangle is given with 3 points. Apply the reflection on xy plane and find out the new coordinates of the object. तो मैं एक्स वाई प्लेन के अबाउट रिफ्लेक्शन दे रहे हैं, इसका मतलब है कि जेड एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन हो रहा है, तभी एक्स वाई प्लेन में रिफ्लेक्शन होगा. तो जेड एक्सिस के अबाउट अगर हम रिफ्लेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ जेड कोऑर्डिनेट की वैल्यू का जो साइन है अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा. फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि ए की जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 4, 1 है, और जेड एक्सिस के अबाउट अगर आप जब रिफ्लेक्शन परफॉर्म करेंगे तो एक्स और वाई में कोई चेंज नहीं होगा. आप देख सकते हैं एक्स और वाई जो नए आएंगे वही आएंगे, सेम आएंगे, ओनली जो जेड कोऑर्डिनेट है वो आपका नेगेटिव हो जाएगा. तो न्यू कोऑर्डिनेट्स बिकम 3, 4, -1. सेम यू कैन अप्लाई ऑन बी, तो दिस बिकम 6, 4, -2. सी बिकम 5, 6, -3. तो जिस एक्सिस के अबाउट आप रिफ्लेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उसी एक्सिस के अबाउट जो कोऑर्डिनेट वैल्यू है वो साइन चेंज होगा, बाकी रिमेनिंग जो 2 कोऑर्डिनेट एक्सेस हैं उनके साइन में और वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा. ओके, नाउ लेट्स सी शियर. तो दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज अप्लाइड टू चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज करना है तो वी परफॉर्म शियर ट्रांसफॉर्मेशन. ये भी हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अबाउट परफॉर्म करते हैं. ओके, यू कैन सी दिस इज अ शियर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स अबाउट जेड एक्सिस. तो आप ये ए देख रहे हैं, बी देख रहे हैं, और दिस इज 1. यहाँ पे 1 इसलिए है क्योंकि वी आर परफॉर्मिंग शियर ऑपरेशन अबाउट जेड एक्सिस. ओके,
और एक्स एक्सिस के अबाउट हम बाई वैल्यू ए शेयर परफॉर्म कर रहे हैं, वाई एक्सिस के अबाउट जो हम शेयरिंग परफॉर्म कर रहे हैं बाई वैल्यू वी, और जेड के अबाउट कर रहे हैं, इसलिए जेड के अलावा कोई भी शेयरिंग नहीं होगी। ओके, तो दिस इज द वे। अगर ये शेयरिंग मैट्रिक्स है अबाउट जेड एक्सिस, अगर हमें शेयरिंग मैट्रिक्स लिखनी हो अबाउट एक्स एक्सिस, तो जो एक्स के करस्पॉन्डिंग वैल्यू है दिस बिकम्स 1 और दिस बिकम्स बी, एंड जेड के बिकम जो वैल्यू होगी इट बिकम्स ए। और अगर हमें वाई के अबाउट शेयरिंग करनी है तो जो वाई कोऑर्डिनेट करस्पॉन्डिंग वैल्यू बिकम्स 1 और एक्स और जेड की वैल्यू बिकम्स ए एंड बी। तो यू कैन सी एन एग्जाम्पल हियर, दिस इज अ क्यूब। ओके, तो वी नो क्यूब में क्या होता है, सारे जो डायमेंशंस होते हैं वो सेम होते हैं, और हम जो शेयरिंग परफॉर्म कर रहे हैं अलोंग जेड एक्सिस परफॉर्म कर रहे हैं। तो चूंकि अलोंग जेड एक्सिस परफॉर्म कर रहे हैं तो जेड के अलोंग कोई भी शेयर नहीं होगा, अलोंग एक्स और वाई के ही अलोंग शेयरिंग होगी, और वैल्यू क्या है 1 से। तो वी आर शेयरिंग द cube along z axis, and after performing shearing operation we get this type of picture. You can see that. Okay, so you can take an example is a triangle is there with 3 vertices, and we have to apply shear parameter 3 on z axis and find out the new coordinates of the object. तो हम जो शेयरिंग अप्लाई कर रहे हैं वो z एक्सिस के नाम कर रहे हैं, और जो वैल्यू है वो 3 है। तो हम ए पॉइंट ले रहे हैं, दिस इज 0 0 0। ओके, तो वी हैव टू अप्लाई द शेयरिंग मैट्रिक्स, सॉल्व करेंगे तो जो एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग न्यू वैल्यू आएगी जो उस मैट्रिक्स को अप्लाई करेंगे तो यू गेट 0, वाई के करस्पॉन्डिंग यू गेट 0, एंड जेड इज जो आपकी 0 थी वो 0 की 0 रहेगी, क्योंकि वी आर परफॉर्मिंग along जेड एक्सिस। ओके, तो एस एच एक्स एंड एस एच वाई एंड इज देयर, एंड आफ्टर शेयरिंग there is no change in the value of A. Same way you can apply the same logic on point B and point C, and you can calculate the new vertices after performing shear operation. Okay, so this is the way you can perform the shear operation. Now till now we have seen the 5 transformations: translation, rotation, scaling, reflection and shear. These are the most used and applied transformations. We have also seen the examples of each transformation, and we can also see how a rotation about an axis that is not passing through origin and not parallel to x-axis. Also we have also seen scaling about a point that is not an origin, and after that we can apply these transformation on any type of numerical and can solve it. So hope you will be able to understand all these transformations and will be able to apply these transformation matrices to solve numericals. Please like, share and subscribe the channel. Thank you.